Hello viewers, this is the introduction part of the chapter 2 fractions and decimals. Let us begin. As we have learned in class 6 that a fraction is a number representing a part of a whole, provided that the whole has been divided in equal parts. For example, here we have a whole circle which has been divided into 3 equal parts. So each part is a fraction of the whole circle, which is equal to 1 by 3, that is 1 out of 3. Here we have 3 equal parts and the shaded portion is 1 out of the 3. So we write this shaded portion as a fraction as 1 by 3. In a fraction like 2 by 3, 2 is called numerator and 3 is called the denominator of the fraction. Types of fraction: proper fraction, improper fraction and mixed fraction. What are proper fractions? In a proper fraction, the numerator is smaller than its denominator. Then that fraction is a proper fraction. For example, 2 by 3, 7 by 9. Here numerator 2 is less than the denominator 3. That is why it is a proper fraction. What is improper fraction? If in a fraction numerator is greater than or equal to its denominator, then the fraction is called an improper fraction. For example, 3 by 2, 9 by 7, 5 by 5. Here the numerator is greater than or equal to its denominator. Mixed fraction: a mixture of a whole number and a proper fraction is called a mixed fraction. For example, 1 and 1 by 3, 2 and 3 by 7 are examples of mixed fraction, where this 1 is whole part and 1 by 3 is a proper fraction. Note: improper fraction can be written as mixed fraction and vice versa. Any natural number can be written as an improper fraction as follows: 6 can be written as 6 by 1, 20 can be written as 20 by 1, and so each natural number is an example of an improper fraction. 0 can be written as fraction with numerator 0 and any whole number except 0 as denominator. For example, 0 can be expressed as 0 by 1 or 0 by 5 or 0 by 10. A fraction in which the numerator is 1 is called a unit fraction. Now, like and unlike fractions. Like fractions are those fractions with the same denominator. For example, 2 by 3, 1 by 3, 7 by 3 are like fractions because they all have the same denominator 3. On the other hand, unlike fractions are those fractions which have different denominators. For example, 1 by 2, 3 by 4, 2 by 5, 1 by 3 are unlike fractions because they have different denominators. Now, decimal fractions.
Fractions having denominator as 10, 100, 1000 are known as decimal fractions. A decimal number has two parts, one whole part and other decimal part. For example, in 2.00375, 2 is the whole part and 00375 is its decimal part. Like and unlike decimals. If the number of digits in the decimal part of two or more decimal numbers are equal, they are called like decimals, otherwise they are called unlike decimals. For example, 371.037, 12.123, 0.109 are like decimals because in their decimal parts there are 3 digits in each. So, they are examples of like decimals. Whereas 95.0375, 1.23, 17.9 are unlike decimals because number of digits in their decimal parts are different, so they are unlike decimals. But these unlike decimals can be made like decimals by adding zeros. Addition and subtraction of fractions. फ्रैक्शनों का जोड़ना और घटाना कैसे करते हैं? The sum of two like fractions is a like fraction whose numerator is the sum of their numerators and whose denominator is the common denominator in both the fractions. Similarly, the difference of two like fractions is a like fraction whose numerator is the difference of their numerators and the denominator is the common denominator in both the fractions. इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश की है। यहाँ पर 4/5 और 2/5 दो लाइक फ्रैक्शंस हैं, इनका एडिशन करना है। तो चूँकि ये लाइक फ्रैक्शंस हैं अतः इसमें बताया गया है कि सम ऑफ टू लाइक फ्रैक्शन इज ए लाइक फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज द सम ऑफ देयर न्यूमरेटर्स। मतलब इसका जो टोटल होगा, इन दोनों फ्रैक्शंस का जो टोटल होगा उसका जो न्यूमरेटर होगा वो इनके न्यूमरेटर्स का टोटल होगा, मीन्स 4 + 2 दैट इज 6, और जो डिनोमिनेटर होगा वो कॉमन डिनोमिनेटर होगा विच इज़ 5। Therefore 6/5 is their sum। इसी तरीके से अगर डिफरेंस निकालना है लाइक फ्रैक्शंस का, तो जो डिफरेंस का न्यूमरेटर होगा वो इन दिए हुए नंबर्स के न्यूमरेटर का डिफरेंस होगा और डिनोमिनेटर जो होगा इसका वो कॉमन डिनोमिनेटर होगा जो कि यहाँ पर 7 है। If fractions are not like, that is unlike, they can be converted into like fractions by taking the LCM of denominators and which will be equivalent fractions of each. For example, 2/3 plus 3/4, they are unlike fractions, so here we cannot add them easily. So we will change into like fractions, that is equivalent fraction, by taking the LCM of the denominators 3 and 4, and the LCM of 3 and 4 is 12. To make their denominators as 12, we have to multiply the first fraction by 4 and the second fraction by 3 as shown here. Here we have
multiplied the numerator and the denominator of the fraction by 4, and in the second fraction we have multiplied the numerator and denominator by 3 to make the denominator 12. So it becomes 8 by 12, it becomes 9 by 12. 8 by 12 is the equivalent fraction of 2 by 3 and 9 by 12 is the equivalent fraction of 3 by 4. इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब यहाँ पर इक्वल वैल्यू रखने वाला है, यानी 2 बाई 3 की 8 बाई 12 की वैल्यू 2 बाई 3 ही है। इसी तरीके से 9 बाई 12 की वैल्यू 3 बाई 4 ही है। चूँकि इन दोनों की वैल्यूज़ बराबर है इसलिए ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाते हैं। तो इस तरीके से इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके इन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। क्योंकि यहाँ पर एडिशन है तो यहाँ पर ऐड किए गए हैं, तो एडिशन का जो आंसर होगा उसका जो न्यूमरेटर होगा इनके न्यूमरेटर्स का टोटल होगा और डिनोमिनेटर कॉमन डिनोमिनेटर 12 होगा। फ्रैक्शन एज एन ऑपरेटर। ए फ्रैक्शन एक्ट्स as an operator of, for example 2 by 3 of 3 is 2 by 3 into 3। ये ऑफ जो है इनटू में कन्वर्ट हो जाता है और फिर ये एक मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन बन जाता है जिसका आंसर यहाँ पर 2 आया है। जहाँ कहीं भी क्वेश्चंस में ऑफ होगा इट मीन्स वहाँ पर हमें मल्टीप्लाई सिंबल लगाना है। तो इस तरीके से एक फ्रैक्शन जो है एक्स एन एज एन ऑपरेटर ऑफ। अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फ्रैक्शंस पर। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए फ्रैक्शन बाय ए होल नंबर भी हो सकता है या मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए होल नंबर बाय ए फ्रैक्शन हो सकता है या मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फ्रैक्शंस भी हो सकता है। सेम रूल यहाँ पर लगेगा और वो रूल क्या है, टू मल्टीप्लाई टू फ्रैक्शंस वी मल्टीप्लाई देयर numerators to get the numerator of the product and multiply their denominators to obtain the denominator of the product. For example 2 by 5 into 3 by 7 is equal to, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है दो फ्रैक्शंस का, तो हमने न्यूमरेटर्स का मल्टीप्लाई किया 2 into 3 और डिनोमिनेटर्स का मल्टीप्लाई किया 5 into 7। तो इस तरीके से 6 बाई 35 इसका आंसर आता है। यहाँ पर एक दो बातें ध्यान देने योग्य हैं जो कि नोट के अंतर्गत दी गई हैं। इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शन इज़ 1, अगर ये रिजल्ट 1 आता है, दो फ्रैक्शंस का प्रोडक्ट अगर 1 आता है, देन आइदर ऑफ देम मीन्स ईच ऑफ देम इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द अदर। एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाते हैं और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का दूसरा नाम रेसिप्रोकल भी है। ए रेसिप्रोकल ऑफ ए फ्रैक्शन इज ऑब्टेन्ड बाय इन्वर्टिंग इट अपसाइड डाउन। किसी भी फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल निकालना हो तो उसे हम उल्टा कर देते हैं। n बाई डी को d बाई n कर देने से वो रेसिप्रोकल में बदल जाता है। अब आते हैं डिवीज़न ऑफ टू फ्रैक्शंस में। टू डिवाइड वन फ्रैक्शन बाय द अदर फ्रैक्शन वी मल्टीप्लाई द फर्स्ट फ्रैक्शन बाय द रेसिप्रोकल ऑफ द डिवाइजर। फॉर एग्जाम्पल 4 बाई 7 is to be divided by 7 by 9, then we will multiply 4 by 7 by the reciprocal of 7 by 9 and reciprocal of 7 by 9 is 9 by 7। यहाँ पर 7 by 9 का रेसिप्रोकल उल्टा करने से मिलेगा और अब ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया जिसमें हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और इस तरीके से ये 36 बाई 49 विल बी द रिजल्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम। अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स। अभी तक मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ टू फ्रैक्शंस था, अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स।
Actually, decimal numbers are also fractional numbers. To multiply decimal numbers, we multiply them without the decimal point. The decimal is placed in the product such that the number of decimal places in the product is equal to the sum of the decimal places in the given decimal numbers. यहाँ पर ये कहा गया है कि अगर हमें दो डेसिमल नंबर्स को मल्टीप्लाई करना हो तो हम उन्हें बिना डेसिमल वाले नंबर मानते हुए उनका प्रोडक्ट निकाल लेंगे और प्रोडक्ट में डेसिमल उस जगह रखेंगे कि प्रोडक्ट में डेसिमल पार्ट्स में उतने ही डिजिट हों जितने की सम ऑफ द डिजिट्स इन द डेसिमल पार्ट्स इन द गिवन डेसिमल नंबर्स हों। यानी अभी हम इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से आगे बता रहे हैं। यहाँ पर 1.02 इंटू 0.3 मान लीजिए करना है, तो हम 102 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि 306 आएगा। अब प्रोडक्ट में डेसिमल ऐसे रखना है ताकि डेसिमल पार्ट्स में नंबर ऑफ डिजिट्स उतनी ही हो जाएं जितना कि इन नंबरों के डेसिमल पार्ट्स की डिजिट्स का टोटल है। यहाँ 2 डिजिट है, यहाँ 1 डिजिट है, टोटल हो गया 3 डिजिट। तो हमें 3 डिजिट यहाँ पर डेसिमल पार्ट में बनाना है, अतः डेसिमल यहाँ पर आएगा। टू मल्टीप्लाई ए डेसिमल नंबर by 10, 100, 1000, etc. we shift the decimal point in the given decimal number by as many places to the right as there are zeros in the multiplier. यहाँ पर ये बताया गया है कि अगर किसी भी डेसिमल नंबर को 10 से या 100 से या 1000 से मल्टीप्लाई करना हो तो सिंपली उस डेसिमल नंबर में दिए हुए डेसिमल पॉइंट्स को उतने ही प्लेस राइट साइड की तरफ शिफ्ट कर देना है जितने कि मल्टीप्लायर में जीरोज हों। अगर मल्टीप्लायर 10 है तो डेसिमल प्लेस 1 प्लेस रिप्लेस होगा राइट साइड, 100 है मल्टीप्लायर तो 2 प्लेस, 1000 है तो 3 प्लेस राइट साइड में डिस्प्लेस करना है डेसिमल पॉइंट को। अब आते हैं डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर्स। टू डिवाइड ए डेसिमल नंबर बाय अनदर डेसिमल नंबर वी रिमूव द डेसिमल पॉइंट इन द डिवाइजर एंड इन द डिविडेंड बाय डिवाइडिंग देम विद मल्टीपल्स ऑफ 10 and then we divide them as fraction. For example, 42.8 is to be divided by 0.02. Here dividend is 42.8 and divisor is 0.02. हमने इसका डेसिमल रिमूव किया तो चूँकि डेसिमल पार्ट्स में 1 डिजिट है इसलिए जब इसका डेसिमल हटेगा तो नीचे 10 आएगा और इसमें 2 प्लेस हैं तो 100 आएगा। अब ये बिना डेसिमल वाले नंबर बन गए जो कि फ्रैक्शंस हैं। अब यहाँ पर हम फ्रैक्शंस का डिवीजन का रूल लगाएंगे, डिविडेंड को एज इट इज़ रखेंगे और डिवाइजर का रेसिप्रोकल करके फिर ये मल्टीप्लिकेशन की प्रॉब्लम बन गई और मल्टीप्लाई करके रिजल्ट 2140 यहाँ पर निकलता है। टू डिवाइड ए डेसिमल नंबर बाय 10, 100, 1000 etc. we shift the decimal point in the given decimal number by as many places to the left as there are zeros in the divisor. यहाँ पर इस नंबर को 1000 से डिवाइड करना है तो ये जो डेसिमल प्लेस है वो 3 प्लेस लेफ्ट साइड में मूव कर जाएगा क्योंकि यहाँ 3 जीरोज हैं
तो 3 प्लेसेस, 2 ज़ीरोज़ होने से 2 प्लेसेस, 1 ज़ीरो होने से 1 प्लेस रिमूव होगा। जितने ही ज़ीरो होते हैं उतने ही प्लेस लेफ्ट हैंड साइड की तरफ डेसिमल मूव कर जाता है और आंसर ये डेसिमल मूव करके जब इधर आ जाएगा तो आंसर 0.42509 हो जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि पूरे चैप्टर के मेन पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे, जिससे पूरी एक्सरसाइज करने में कोई परेशानी नहीं आएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।